आज आप सभी को पता है, दो इतने सालों से और इतने वक्त से जो इंतज़ार था, वो आज द अरुणाचल प्रदेश Freedom of Religion Act Rules 2026 has been duly submitted to the government, to the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh this morning. So, we want to just to inform the public and through you that this has been submitted to the government. So IPSAB expresses its appreciation to the state government and the High Power Committee for undertaking extensive consultation with various stakeholders and for facilitating a democratic, transparent, and participatory process in examining issues relating to the implementation of the Act and the framing of the rules thereunder. You know that the mandate of the High Power Committee was confined to matters relating to the implementation of the Act and the framing of the rules and did not extend to examining the validity or continuation of the parent legislation thereof. So with the consultative process now concluded, the report has duly been submitted and IPSAB expects that the state government to take appropriate steps within a reasonable time frame to consider the recommendations and bring the rules into force in accordance with the law. The society hopes that the government will act expeditiously in fulfilling its constitutional and statutory obligations. IPSAB shall continue to closely monitor the progress of implementation and, if necessary, pursue appropriate legal remedies available under law to ensure compliance with the mandate of the Honorable Guwahati High Court and the applicable statutory framework. It is pertinent to note that throughout the proceedings before the Honorable High Court, there has been, as you know, the Arunachal Christian Forum did not oppose the framing of the rules under the AFRA. The issue of framing the rules remained uncontested before the court. In this context, statements issued at the concluding stage of the consultative process regarding the framing of the rules are both surprising and regrettable, which IPSAB feels that in the fag end of the drafting of the rules, this has come out. But it is unfortunate. However, IPSAB is of the considered view that the state government has throughout the process extended adequate opportunities to all stakeholders and has made sincere efforts to hear and consider their concerns. Meaningful participation and constructive engagement by all the stakeholders and strengthen the democratic consultation and help promote mutual understanding and consensus building. The society also rejects the perception being promoted in certain quarters that the framing of rules under AFRA is directed against any particular religion. ये आप गौर करिए, this rule is not against any religion or religious community. Such assertions are misleading and unsupported by the legal and factual position. The framing of rules is a statutory requirement intended to facilitate the effective implementation of an existing law enacted by the legislature. Once notified, the rules will be a public document accessible to all the citizens, thereby promoting transparency, accountability, and informed public discourse. Furthermore, it is recognized that no set of rules is immutable. Like all forms of subordinate legislation, the rules may be reviewed, amended, refined, or modified by the government from time to time in accordance with constitutional principles, public interest, changing circumstances, and the objective of ensuring peaceful coexistence among all communities of the state. At this advanced stage of the process, the efforts to delay or obstruct the notification of the rules through public pressure or confrontational approaches may not be conducive to the spirit of democratic consultation and constructive dialogue
Democratic societies function through constitutional procedures, legal processes, and institutional engagements, which remain the most appropriate avenues for addressing differences of opinion. IPSAP reiterates its unwavering commitment to constitutional values, indigenous rights, religious freedom, social harmony, and peaceful coexistence among all communities of Arunachal Pradesh. The society remains hopeful that all stakeholders will continue to engage in constructive dialogue and uphold mutual respect while allowing the government to discharge its lawful responsibilities in accordance with the constitutional and the laws of the land. So thank you very much, and therefore the IPSAP is the opinion of the IPSAP. ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे अरुणाचल के जितने भी वासी हैं उनको एक मिसकोट किया गया है और उनको एक मिस इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है कि जो अफरा एक्ट है और अफरा की अगर रूल जब फ्रेम करेंगे ये किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लिए ही है और दूसरा मजहब को वो दबाने के लिए है, लेकिन वैसा नहीं है. दिस रिलीजन इज फॉर ऑल religious followers, religions of the state, whether it is a Buddhist, whether it is a Hindu, whether it is a followers of the indigenous believers, or whether it is Islam, or even whether it is a Christian. So therefore it is not against any religion. मैं इस रूल की जो फ्रेमवर्क है और इस एक्ट की जो फ्रेमवर्क है इसमें मैं ये गौर करना चाहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज हमारे पूरा अरुणाचल में ये जाए कि अफरा इज़ नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, नंबर वन, एंड द रूल्स विच हैज़ बीन फ्रेम it is not against any religious followers or against any religious institutions. It is for every religious followers, it is for every religious institutions, and it is for coexistence amongst the people of Arunachal Pradesh who are following different sects of religions as on today. Thank you very much. Any questions and queries? तो सर जैसे कि आपको पता ही होगा अरुणाचल सिस्टम फोरम की 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है. उन लोगों का ये कहना था कि जितना भी रूल्स फ्रेम हो रहा है या फिर नोटिफाई हो रहा है उसको रोकना है बोल के, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेगा? मैं क्रिश्चियन फोरम के जो जितने भी मेंबरान हैं उनके जो अथॉरिटीज़ है उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेंगे कि यू आर ऑल लर्नड पीपल, यू आर ऑल नॉलेजेबल पीपल, यू हैव, आपने अफरा का जो एक्ट जो है उनको आपने पढ़े हैं और एक्ट के ऊपर में हमको रूल फ्रेम करना है. उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि ये किसी मज़हब वाले का अगेंस्ट में ऐसा रूल फ्रेम करो बोल के. ये समझना बहुत ज़रूरी है. और हमारे जितने भी अरुणाचल के वासी है जो दूसरे धर्म को जो अपनाया है उनके माइंड में ये डेवलप किया गया है, ये इनपुट दिया गया है कि इट इज़ अगेंस्ट देयर रिलीजियस फॉलोइंग. देयरफॉर इसको करेक्ट करने के लिए हम सभी को मेहनत करना पड़ेगा और मीडिया के माध्यम से ये मैसेज क्लियरली जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक रिलीजन को प्रेशराइज करने के लिए, उनको तारनिश करने के लिए और उनका अगेंस्ट में है बोल के ऐसा नहीं है. ये शायद अरुणाचल के बहुत दूर दराज के जो अरुणाचल हमारे अपने वासी हैं उनको पता भी नहीं है किसी को. मेरा अपना तजुर्बा भी है, क्योंकि मैं जब गांव में दूर दराज में मैं गया तो उनसे जो मेरे भी काफ़ी रिलेटिव्स है जो क्रिश्चियन फॉलो करते हैं, उनको जब पूछा गया उनको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि आपका जो अफरा जो है वो हमारा रिलीजन का अगेंस्ट में है बोल के. हमने बताया एक्ट के मुताबिक ऐसा नहीं है. दिस इज़ टू प्रिवेंट एंड ऑल रिलीजन फ्रॉम एनी कन्वर्सन, कोअर्शन, फ्रॉडुलेंट मीन्स ऑफ कन्वर्सन. तो सोर्स से पता चला है कि जितना भी हाई पावर कमेटी मीटिंग बैठा गया था सिविल सेक्रेटरीट में, तो मैक्सिमम एसीएफ का मेंबर्स तो अटेंड ही नहीं किया है बोले. तो इसको लेके, क्योंकि जैसे कि आप बोले कि कोई भी रिलीजन का अगेंस्ट नहीं है, सीएम पेमा खांडू सर भी ऐसे बोलते हैं, तो
अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को कि आप लोग साइडलाइन कर देंगे या फिर नहीं, मीटिंग अटेंड नहीं किया? अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम तो अटेंड किए हैं और अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का मेंबर है। हमारा कितना है अरुणाचल में, कितना इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स है। आप ईस्ट से वेस्ट जाइए, ये एक जो बुद्धिज्म है वो तो मोर देन 2000-3000 ईयर ओल्ड रिलीजन है और अपना यहाँ पे भी इंडिजिनस बुद्धिस्ट फॉलोअर्स है। लेकिन जो इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स लोग हैं, अगर आप लोंगडिंग में जाइए, आप तिराप में देखिए, चांगलांग में देखिए और अपना सेंट्रल बेल्ट, सियांग बेल्ट, अर्लियर सियांग बेल्ट या यहाँ पे सुवनसिरी बेल्ट है, अपना कामिंग बेल्ट है, वहाँ पे कितने रिलीजियस फॉलोअर्स हैं। उनका एक ही रिप्रेजेंटेटिव रहा और वो इप्सा। उसी तरह क्रिश्चियन में भी बहुत सारे डिनोमिनेशंस है, बहुत सारे सेक्ट्स है, तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था एसीएफ। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन को भी आप लोग का तरह से क्लैरिटी होना चाहिए। क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव वाज देयर, इंडिजिनस रिप्रेजेंटेटिव वाज फ्रॉम द इप्सा और उसी तरह जो बुद्धिस्ट का रिप्रेजेंटेटिव है वो भी थे। उसी तरह सभी रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स वेर देयर। तो मेरा एक सवाल रहेगा, जो कि ये एक्ट जो 1978 का है, हालांकि बहुत पुराना एक्ट है, लेकिन अभी तक इसको कंप्लीट तरह से इम्प्लीमेंट, हालांकि इम्प्लीमेंट हो चुका था लेकिन कंप्लीट तरह से नहीं हुआ था। इतना टाइम क्यों लग गया, या फिर इसका वजह क्या है, कहीं ना कहीं ये लेट हो गया है क्या? आप लोगों का हिसाब से क्या लगता है? और जैसे आप लोग बार बार कहते हैं कोई भी इंडिजन किसी की रिलीजन का अगेंस्ट नहीं, किसी भी रिलीजन का अगेंस्ट नहीं है, फिर भी बार बार एसीएफ इसका प्रोटेस्ट कर रहा है, अगेंस्ट कर रहा है। क्या लगता है क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, क्यों अगेंस्ट कर रहा है इसका? और या क्या सच में लेट हुआ है कि अगर लेट नहीं हुआ तो इसको कितना जल्दी इसको कंप्लीटली हो प्रोसेस? अभी तो हम चाहेंगे कि इसको जो फर्दर ऑनरेबल कोर्ट में गवर्नमेंट नहीं जाए और उससे पहले ही ये लागू हो जाना चाहिए। और हमेशा यही कहते हैं कि 78 है और 2026 है। कोई भी एक्ट को लाने के लिए एक कंसेंसस होना भी बहुत ज़रूरी है। पहले भी होना चाहिए था, जब हम यूनियन टेरिटरी में थे, इट वाज ऑलरेडी देयर। ये भी तो बात है। लेकिन हमने स्टेटहुड में जब हम अरुणाचल अग्रसर हुआ तो स्टेटहुड में जो रूल्स यूनियन टेरिटरीशिप में था उसको कोई रूल्स को उसको टेकअप नहीं किया गया है और उसी तरह रह चुका है। लेकिन आज समाज भी जाग चुका है और ये सिर्फ इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स को थ्रेटन है बोल कर नहीं है, ये इवन यो क्रिश्चियन जो हमारे इंडिजिनस बिलीवर्स जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ उनका भी तो कन्वर्जन भी हो रहा है और दूसरा जो रिलीजियस फॉलोअर्स है उनका भी हो रहा है। तो डेफिनेटली हम सभी को अपना रिलीजियस फॉलोअर्स को फ्रॉडुलेंट वे ऑफ कन्वर्जन के लिए थी ये रूल आज ज़रूरी है और ये आज होना चाहिए। तो क्या लगता है इससे मतलब इंडिजिनियस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? फ्यूचर में कोई इफेक्ट नहीं है? नहीं, तो क्यों कैसे करेंगे? शायद आप लोग को जो ग्रुप जो दिल्ली में गया था हाल में, उसमें कुछ लोग जय श्री राम लगाया, तो जरूरत पड़ेगा तो दूसरा प्रोग्राम में उसका भी नारा लगा सकते हैं, इसमें कोई तो हर्ज नहीं है ना? नहीं, वो जय यीशु जय अल्लाह तो उनका प्रोग्राम में होंगे ना। हमारा प्रोग्राम में नहीं है। हमारा प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम नहीं है। हम जब अपना प्रोग्राम में आतुरतो अनेदोनी बोलते हैं तो हमारा भारतवर्ष के रिलीजियस फॉलोअर, रिलीजन वाले, वो हमारे साथ नारा लगाते हैं। वो कौन सी बड़ी बात है, नारा लगाते हैं। तो एक चीज है डॉक्टर साहब, ये जो हम लोग जो सेकुलर फैब्रिक का बात करते हैं तो इससे तो कोई इतना इश्यूज नहीं होना चाहिए। ये सेकुलर फैब्रिक की को ही जोर देते हैं। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app